आज के अतिथियों को मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा। सबसे पहले डायरेक्टर एसजीपीजीआई श्री आर के धीमन सर मंच पे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आलोक धवन जी डायरेक्टर सीबीएमआर, प्रोफेसर अनुराग मायरल स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायो डिजाइन, प्रोफेसर राजीव दोषी प्लीज हैव ए सीट ऑन स्टेज। डॉक्टर नंदिनी टंडन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। श्री अक्षय त्रिपाठी सर आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। श्री कुमार विनीत जी स्पेशल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ यूपी। डॉक्टर राहुल सिंह फ्रॉम जिम्स ग्रेटर नोएडा। अब मैं एसटीपीआई टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे गेस्ट का बुके दे करके वेलकम करें, अभिनंदन करें। दिशा डायरेक्टर एसजीपीजीआई इधर से आगे से आलोक धवन जी, अनुराग मायरल जी, प्रोफेसर राजीव दोषी जी, डॉक्टर नंदिनी टंडन जी, अक्षय त्रिपाठी जी, श्रीमान कुमार विनीत जी को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर राहुल सिंह जी। तो हम लोगों ने कल के कार्यक्रम में भी दिन भर का कार्यक्रम रहा होटल ताज में, और वहाँ पे विभिन्न टॉपिक्स पे हेल्थ टेक से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, क्या न्यू प्रोग्रेस है, इनोवेशंस है, एज वेल एज पॉलिसी रिलेटेड मैटर भी वहाँ पे पैनल डिस्कशंस के फॉर्म में डिस्कस हुए। और एक अच्छा आउटकम मुझे लगता है कि वहाँ से हमें मिला होगा, और उस फीडबैक के आधार पे हम लोग निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में काम करेंगे। तो आज के कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा मोर ऑन टेक्निकल साइड है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं यहाँ मेडटेक सीओई में काम कर रहे हैं, जो 8 स्टार्टअप्स हैं जिन्हें स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायो डिजाइन ने मेंटरिंग के लिए फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, उनका आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा। और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं डाइस पे, उनके कमेंट्स और उनके फीडबैक आपको हेल्प करेंगे डेफिनेट रूप से कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टर एसजीपीजीआई श्री आर के धीमन साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया आए मंच पे और वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Thank you, Dr. Praveen. Dignitaries on the dais, Professor Alok Dhawan, the director of the CPMR, and we have the esteemed guest from abroad, Dr. Rajiv Doshi, who is the adjunct professor in the Stanford Center for the Bio Design, and Dr. Anurag Maiwal, Director Global Outreach, Stanford Center for the Bio Design, and most esteemed, the daughter of the UP,
I would say Dr. Mrs. Nandini Tandon. I think she is so active, and if something is coming out today, that's all because of her and her colleagues' efforts. And she is from the Setu department of the Information Technology, IT and Electronics, the government of UP and Indo-US Setu Global Foundation also. Shri Akshay Tripathi ji, IAS, Special Secretary IT and Electronics. Shri Kumar Vinit ji, IAS, Special Secretary IT and Electronics. Dr. Rahul Singh from the GIMS and Dr. Praveen Dwivedi, Additional Director, STPI. I welcome you all for this function and really I am honored to be the part of it. You all know that we have the MedTech centers at Sanjay Gandhi PGI and it was formally inaugurated on 18th of December 2021 by our esteemed State Minister for IT and Electronics, Honorable Rajiv Chandrasekhar ji. And this is basically a kind of the incubation center that gives an opportunity to innovate also. And at the moment that I have come to know that there are the 25 startups have already come up. And out of 25, 8 have been selected by the Stanford Center for the Biodesign for further development or the further support or hand holding. At the moment, there is a partnership between the four. One is the software technology part of India and our center MedTech and the Stanford Bayer Center for the Biodesign and Indo-US Setu Global Foundation. And I have just told you the representative of each of these centers or the institutions. I think this is the opportunity for all of us, particularly the youngsters one also, to think for the innovations and participates for the new startups also. I have been told, in fact, we want also that at the SGPGI, which is having now more than 2000 beds over here and having more than 300 faculty over here, and about half of them they are the younger faculty also. This is the best opportunity for them to indulge in this kind of the program also. I have seen that we have seen video endoscope only in the morning also. That is something fantastic. Not even a faculty, by a anesthetic anesthesia technician, he has evolved this kind of the product over here. The another is the bilirubin measurement also. I think these are the small things. They are required and they have the impact on our current understanding as well as the practices also. Yesterday we were just discussing what kind of the startup should we have, what kind of the things that we require. I think it should be only the need driven. What is our need and we should be doing also in that direction. Yesterday I have seen some startups. One of them was colposcopy kind of a thing. That is the endoscope. So we are running a program for the early detection of breast cancer as well as the cervical cancer. Breast cancer is fine that we have the all kind of the uh, uh, that is the physical examination and thereafter we have the mammography and other things. But for the cervical cancer, I think the first you have to start with
first scapulum examination. But in that direction, I would say the development of the scope that could be done, and it is integrated with the artificial intelligence also, and can give the diagnosis immediately or within few minutes or so. I think this kind of innovation is practically important in our endeavor for uh, early detection and the prevention. So I won't say much now. I have my best wishes for the entire team for this organization of this seminar or the workshop, this conference that we are having today. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर धीमन। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्टर धीमन इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रोग्रेस के लिए और इसकी ग्रोथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए हमेशा बहुत ही इंथुसियास्टिक रहते हैं। आप कभी भी इनसे कहिए कि हमें ये सपोर्ट चाहिए इस सेंटर के लिए, ही इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट इन एनी वे। So this is very good news for all the startups already onboarded as well as who are under process of onboarding. कि SGPGI is always ready to support in mentoring, in providing clinical trial facility in either way. So ये आपको SGPGI जैसा संस्थान आपके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है। तो इसे जितना ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे वो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर राहुल सिंह से कहूंगा कि आप मंच पे आए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किस तरह से आप इनोवेशंस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज हैं, उसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्कार। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स ग्रेटर नोएडा में है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है और इतना यंग कि फर्स्ट बैच ऑफ एमबीबीएस इस साल हमारे पास आउट होंगे। और पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में कोविड-19 के इस पैंडेमिक में वी स्टार्टेड विथ अ 10 बेड कोविड हॉस्पिटल टू अराउंड 450 बेड कोविड हॉस्पिटल बन गए और राज्य सरकार ने 3 अलग-अलग पैरामीटर्स पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट, बेस्ट इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन एंड बेस्ट इन इनोवेशन के अवार्ड से जिम्स को नवाजा। मेरी जो अगली 7 से 8 मिनट की ये जो सेशन है, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊं कि राज्य सरकारों के पास इतनी सुविधाएं हैं और इस लेवल एंड इस स्टैंडर्ड की हैं कि आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। इस पूरे सेशन में आई टेक यू थ्रू अ शॉर्ट वीडियो ऑफ व्हाट जिम्स इज। प्रोबेबली आप सबके मन में जब भी आप सरकारी संस्थानों के बारे में सुनते हैं तो एक परसेप्शन होता है। हम उस परसेप्शन से इनोवेशन तक की जर्नी की बात करेंगे और थोड़े इंटरेस्ट जगाने के लिए कह दें कि भारत का जो पहला ट्रायल हुआ थ्रू ड्रोन, पॉसिबिलिटीज ऑफ डिलीवरिंग ब्लड बैग्स थ्रू ड्रोन वाज डन इन द कंट्री। 2 बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे, एक जो 100 साल पूरे कर रहा है इस साल, लेडी हार्डिंग, और एक यंगेस्ट मेडिकल कॉलेज जिम्स ग्रेटर नोएडा आईसीएमआर के साथ मिलकर ये ट्रायल हमने करा है। और इस सेशन में अधिक बात नहीं करते हुए एक छोटा प्रेजेंटेशन है कि ये कितनी अपॉर्चुनिटीज as a state, as a young medical college, with all the possibilities that we bring. This is a small video, and then I'll take you through the विश्वास का वो नाम जिसने पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और पेशेंट केयर को पूरी तरह बदल दिया। ये जिम्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता और यहाँ के मेडिकल स्टाफ की मेहनत थी, जिसके दम पर जिम्स ने कोविड के दौर में न केवल नए प्रोटोकॉल से मरीजों को बेहतर इलाज दिया, पर साथ ही अपनी इनोवेशन से जिम्स ने बाकी हॉस्पिटल्स का नेतृत्व भी किया। We took COVID as an opportunity and हमारी पूरी जिम्स की टीम ने एक लग के काम किया एंड पूरी फर्स्ट वेव वी हैव एडमिटेड मोर देन 3000 पेशेंट्स एंड पहली वेव में गौतम बुद्ध नगर में मृत्यु दर न केवल प्रदेश में बल्कि देश में सबसे कम था।
हमारा ओनली सेंटर है जहाँ पे कि डायग्नोसिस से लेके स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, इंटेंसिव केयर, complete comprehensive treatment and plasma therapy. All the medicines were available to all the patients without any discrimination. Government Institute of Medical Science, it holds a place of pride, especially in the history of Greater Noida. James, as we call it in short, has done wonderful work in terms of medical treatment, especially during COVID time, because I was the nodal officer of District Gautam Buddha Nagar. And I think James has created records in terms of women service to the community. रिसर्च हो या एकेडमिक्स, दोनों ही क्षेत्रों में जिम्स की अपार सफलता का श्रेय जाता है यहाँ के कर्मियों को, जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर मन में कुछ बड़ा करने का जज्बा हो तो क्या नहीं किया जा सकता। Government Institute of Medical Sciences Greater Noida is an apex institute of Western Uttar Pradesh. Over here, our emphasis is on developing state-of-art infrastructure, laboratories, and skill lab for providing world-class medical education to our students. JIMS has contributed not just in the field of medical education and patient care, it has also contributed immensely to research. And for its contribution to research during COVID pandemic, JIMS was awarded the best medical college in the field of research because it has maximum number of research publications. हर रूप से सक्षम लैब्स, लोगों की सुविधा के लिए लगातार विकसित होती टेक्नोलॉजी और साथ में यहाँ के अनुभवी और कुशल डॉक्टर्स का साथ बनाता है जिम्स को बाकी सभी हॉस्पिटल से अलग और बेहतर। March 2020, there was a lockdown. So we started the first lab in Western UP within 10 days time. We didn't even had a PCR machine or any other machinery to do PCR tests. Our capacity escalated exponentially from 50 tests per day to 2,000 tests to 3,000 tests. And finally, we are doing minimum of 12,000 testing per day. And we have hit the latest record on all over UP. We have created a benchmark of testing 22,448 samples in a single day. टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है जिसमें कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, हम उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं इसको। और हम यहाँ पे जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज होंगे उनको हम हर तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे। लोगों के प्रति समर्पण और सेवा भाव, हर मरीज को अपने परिवार का हिस्सा मानना, अपने प्रयासों से हर व्यक्ति को घर जैसा माहौल देना और पेशेंट केयर के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों से जिम्स ने पूरे उत्तर भारत में एक अलग नाम बनाया है। हम लोगों ने पेशेंट केयर को रिवाइज कर दिया है, उस बिलीफ सिस्टम को, उस फेथ सिस्टम को कि सरकारी अस्पताल भी घर की तरह हो सकता है, जहाँ के डॉक्टर्स मरीज को अपने घर वालों की तरह इलाज करते हैं और जहां मौत के जंग में जिंदगी को खींच कर निकाला जाता है। जिम्स पिछले कुछ वर्षों में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में विश्वास का नया नाम बनकर सामने आया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, एंड वी आर अ गवर्नमेंट फैसिलिटी, वी प्राउडली से दिस, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम एक सरकारी अस्पताल हैं। मेरी ये प्रेजेंटेशन जो प्रॉब्ली अगले 4-5 मिनट की है, पीपीटी है। We are an autonomous medical college located at one of the most upcoming city of the state, Greater Noida. कोविड के दौरान हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इनोवेटर्स इस हॉल में बैठे हैं, ये समझ लीजिए कि जब जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इनोवेशन के लिए। कोविड के पहले दुनिया में एंटीजन किट्स नहीं थे, कोविड के बाद दुनिया ने एंटीजन किट्स देखी। जिस आरटीपीसीआर के लिए काफी वेट करना पड़ता था, अब आप देखिए तो आपके घर के बाहर अगले 10 मिनट में आप टेस्ट कर लेते हैं। तो इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। हमारे यहाँ इस तीनों पैरामीटर्स पर जब स्टेट गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड दिया
तो हमारे विजन बहुत क्लियर हो गई कि वी वांट टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर, इन मेडिकल एजुकेशन, बायोमेडिकल रिसर्च, एंड द लेटेस्ट addition to the vision is one of the best medical innovation centers. हम एक 500 बेड का अस्पताल है, लगभग पूरे महीने की ओपीडी हमारे पास 30,000 पेशेंट्स की ओपीडी होती है। डायबिटीज दो तरह की होती है, काफी लोगों को पता होगा। टाइप 1 डायबिटीज का हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और काफी सारे सेंटर्स हैं, और हमारा जो लैब है इट्स वन ऑफ द क्लास सेंटर्स। जिस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें हैं एक मेडिकल कॉलेज को बेहतर करने के लिए। पैरामेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज, अभी रिसेंटली हम लोगों ने नर्सिंग स्कूल स्टार्ट करा है, पैरामेडिकल स्कूल स्टार्ट करा है। एक सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम चाहिए होता है, जिस इकोसिस्टम की वजह से आप और हम इस कमरे में बैठे हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी ऐसा कुछ चाहिए होता है, जो हम लोगों ने काफी अच्छे से डेवलप करा है। हमारा पहला बैच, हमारे पास एमबीबीएस के अलावा एमडी, बीएससी, एमएससी इन नर्सिंग और डीएनबी भी हैं। लगभग 150 से ज्यादा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे यहाँ आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के चल रहे हैं पहले से। राज्य का एक बहुत स्पेशल होता है एमआरयू, जो आईसीएमआर देती हैं, वो हमारे संस्थान में है। वीआरडीएल है, जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है, BSL-3 लैब है, सेल कल्चर लैब है, और लेटेस्ट जो हमारे पास अभी है, प्रदेश सरकार का पहला मेडिकल इंक्यूबेटर। हम बात करेंगे 28 मार्च को हमें ये स्वीकृति मिली है राज्य सरकार से, और उसके बाद भारत में पहली बार ड्रोन डिलीवरी फिजिबिलिटी चेक करेगी कि क्या पॉसिबल है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अगर हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या ये फिजिबल है। तो इस फिजिबिलिटी में विथ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल स्कूल एंड वन ऑफ द यंगेस्ट मेडिकल स्कूल केम टुगेदर एंड वी वर अ पार्ट ऑफ द स्टडी। उसके बाद हमारे पास स्टार्टअप के आने का सिलसिला शुरू हो गया, और जब GIS लखनऊ में हुआ था तो हमारे यहाँ से 2 स्टार्टअप आए थे। और मैं बता दूं कि ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये 2 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने पहली बार पीरियड्स के पेन, जिसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, उसके अराउंड डिस्कशन करा, एंड दे गॉट टू नो कि ये पेन होता क्यों है, कितने तरह के पेन होते हैं। और जब इनको लगा कि क्या हम इस पेन के अराउंड कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने प्रॉब्ली फर्स्ट मेड इन इंडिया एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो नॉन इन्वेसिव है, रिचार्जेबल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कोलकाता के बच्चे IIT पटना में इंक्यूबेट होकर एक डिवाइस बनाते हैं और क्लिनिकल ट्रायल के लिए परेशान होते हैं। वो क्लिनिकल ट्रायल इनका जिम्स में हो रहा है, और अभी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ने उनको अपने कवर पेज पर स्पेस दिया है। जब हमने ये पहला ट्रायल किया ब्लड डिलीवरी का, उसके बाद हमारे पास एक स्टार्टअप आया कि हम हेल्थ केयर में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, हमें ड्रोन बनाना आता है, आप हमें हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स बताइए। उनके साथ अभी जो हम कर रहे हैं, टीबी के सैंपल, एक MDR टीबी होता है, और MDR टीबी के सैंपल अभी भी हमारे शहर से आगरा के एक संस्थान में आती हैं। वो हमारे साथ एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं कि अगर जो ड्रोन ब्लड को लेके जाता है, वाइब्रेशन का क्या असर है खून पर। इन डिफरेंट पैरामीटर्स की स्टडी के लिए एक मेडिकल कॉलेज से बेहतर सेंटर होता नहीं है, और इस तरह की जो भी फैसिलिटीज हैं हर जगह, हर स्टार्टअप के लिए हमें मुहैया करा रहे हैं। हमारी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, हमारे पास जो है, हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज आर रिसर्च विंग, जहां हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है, BSL-2, BSL-3 लैब्स हैं, सेल कल्चर लैब है, और स्टेट ऑफ द आर्ट MRI, CT स्कैन, जो भी आपको चाहिए होता है सब कुछ है। ये सोचते हुए कि हम एक सिर्फ 4 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है। जो तमाम स्टार्टअप आ रहे हैं, मैं सबके तो नाम बताना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन काफी लोग हम जो हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज को, मेकिंग हेल्थ केयर एक्सेसिबल टू द लास्ट माइल, इस ड्रीम को अचीव करने में जो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होता है कि व्हाट आर वी चार्जिंग, कुछ डिसाइडेड नहीं। अगर आप एक मिशन पर हैं कि आप हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये मेडिकल कॉलेज आपके लिए है। ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, और यह है पेश आपके सामने राज्य सरकार का पहला मेडिकल इंक्यूबेशन सेंटर, जिम्स ग्रेटर नोएडा। थैंक यू। प्रॉब्ली आई जस्ट टेक, अगर मुझे इजाजत हो, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जब ये ड्रोन लेकर आए थे, हमने इनको कहा कि आप 2nd फ्लोर पे आ जाएं, बोर्ड रूम में वेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर कैसे लेकर आए। हमने कहा कि लिफ्ट से लेकर आइए। कहा लिफ्ट में आएगा नहीं। तो हमने कहा कि अगर ड्रोन नहीं आएगा तो मीटिंग भी नहीं होगी। फिर ये एक कॉफीन सा बैग लेकर जब सीढ़ियों से ऊपर आए, मैंने पहली बार इस तरह का ड्रोन देखा था। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि अगर टेक्नोलॉजी के लोग हेल्थ केयर में आ जाएं तो इससे बड़ा मैजिक। कल भी ये बात हो रही थी कि इस प्रदेश में स्किल और स्केल, इस 2 चीजों पे काम करना है, जो हमारे मुख्यमंत्री भी कल कह रहे थे।
और ये आखिरी वीडियो एक अच्छा मैसेज है ये देखने के लिए कि इस तरह का ड्रोन शायद काफी लोग आगे देख पाएं। है जहाँ बैग्स आते हैं इसमें डिलीवरी जाती है। एज मेडिकल कॉलेज हमारी जिम्मेदारी है ये तय करने की जो खून जा रहा है क्या रियल मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल है, क्या वाइब्रेशन का असर खून पर है, क्या क्वालिटी मेंटेन हो रही है। इन 3 सवालों के जवाब हम देंगे अपने यहाँ ट्रायल करके। ये क्यूआरएस कोड स्पेशल है कि उसकी लैंडिंग क्यूआरएस कोड से होगी और संभवतः जो अभी अगले से 2 महीने में जब हम ऑफिशियल लॉन्च करेंगे अपना सेंटर, ऑफिशियली विल बिकम द फर्स्ट ड्रोन बेस्ड हॉस्पिटल इन द कंट्री जहां लोकल डिलीवरी ऑफ द ब्लड बैग्स विल बी डन फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और ये उम्मीद है और उम्मीद साथ मिलकर तय करेंगे। धन्यवाद। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर राहुल सिंह, जिसमें जिम्स में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और किस तरह से वो इनोवेशंस को अपने मेडिकल कॉलेज में बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, धन्यवाद। इसमें अब हम कार्यक्रम के उस फेज में हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स के प्रेजेंटेशन होंगे और नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस आयशा चौधरी फ्रॉम स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर बायो डिजाइन कि अब स्टेज को टेक ओवर करें और आगे का प्रोग्राम रन करें। उससे पहले एक शॉर्ट वीडियो मेडटेक फैसिलिटी पे भी है, हालांकि वो कल के प्रोग्राम में प्ले किया गया था, लेकिन जो लोग आज ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, सारे गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ देम मैं चाहूंगा कि ये एक 2-3 मिनट का वीडियो प्ले किया जाए सो दैट